English speaking guy from Faridabad is new. Rare. Content creation is the cool job nowadays. And the most popular view that I get is that I want to be famous. Fundamentally, fame की need is a status need. The fundamental question about why people want to be famous is also FOMO. Because लोगों को लगता है कि fame के उस पार कुछ है, फिर आपको और fame चाहिए, फिर आपको और relevance चाहिए, और वो cycle continuously घूमती रहती है. It's better, generally speaking, to be respected by 1,000 people very much than by 1,000,000 people little bit. Trying to be famous, then not getting it, then getting it, and then that's stabilizing. What was the mind shift change? The world gives a shit if you have status. The world gives a shit if you have money. It's true. It's a black pill about the world. In my hearts of heart, bottom deep inside my mind, मेरे को एक बात पता है कि मैं स्टार हूँ. मेरे को पता है I'm here to win. Single player video game है. खत्म करना है. दुनिया में anxiety, mental health, इन सब terms को लेके जो खिलवाड़ चल रहा है. I think success and winning is a very understated element in that conversation. सब ये कह देंगे कि आप थेरेपी कर लो, सब ये कह देंगे कि आप फलान ढिमकान कर लो, कोई ये नहीं कहेगा जीतना जाके. उसको मैं ऐसे नहीं देखता कि प्लान भी कहीं और होगा. Assets I have. So I have reputation, I have reach. My ability to talk is an asset. My network's an asset. How can I leverage this to the next thing? Paper के boards बना के फेंक रहे थे, गिल्ली डंडा वगैरह खेल रहे थे. And then suddenly if you look at kids now, अपनी बात कर. भाई यार. Prakhar, so for the uninitiated, in case we have any, would you like to quickly talk about how you define who you are? I think I struggle with that question. That's why I'm asking that question. Right. Well, okay. If we're going to go deep. So, most people know me as a podcaster. I like to think of myself as being in stage one of building an entrepreneurial career. The first step happens to be media. The reason I ended up in media is partly because I was interested, partly because I found I'm very good at it. And within media, I think what I'm specifically good at is talking, because once you start considering media as an ecosystem, you realize there is many slivers to it. There's many flavors to media, and some people are good at something and some people are good at something. Now I run a very popular podcast called The Prakhar Gupta Experience. We do billions of views a year. Sometimes it's uncanny because I live in Faridabad, when I'm walking somewhere that's not home and I get recognized, I'm like, oh, ये सब भी जानते हैं मेरे को, ये सब कब मैं हो गया. And that's kind of cool. But yeah, that's how I'd probably define myself. Is that good enough? English speaking guy from Faridabad is new. Rare. नहीं, मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ, और मैं और भी मतलब है मेरे में फ्लेवर्स, पर हिंदी में ना कई बार यहाँ वहाँ निकल जाती है बात. Idea was just to, give a behind the scenes peek and, maybe kindle some, thoughts from different lenses. Content creation is the cool job nowadays. Everybody in some or the other way is kind of jumping into it. Some with an agenda, some without an agenda. And when I talk to people, including, founders, including people who are, let's say, I'm not talking about kids, I'm talking about people who are accomplished at a certain level. When I talk to them about content creation, I rarely get a nuanced or a view that I can appreciate. And the most popular view that I get, which I really worry about, is that I want to be famous. And when I ask them that what will you do with that fame, they rarely have an answer. Most of the answers are कि famous हो जाएंगे तो कुछ तो हो ही जाएगा. And तो पहले तो famous होने से क्या हो जाता है? देखो, fundamentally, fame की need is a status need. ठीक है, आदमी को पता है मैं फेमस हो जाऊंगा ना तो मेरा द वे आई अपीयर टू अदर्स चेंजेस. और अगर मैं इसकी और साइकोलॉजिकल डेप्थ में जाऊं, हो सकता है सब लोग रिलेट ना करें, हो सकता है कुछ लोग सोचे क्रास बात है, बट फंडामेंटली इट्स अ मेटिंग डिजायर. स्टेटस की डिजायर आती है फ्रॉम योर इंटरेक्शन विद द ऑपोजिट जेंडर एंड देन थ्रू दैट द सेम जेंडर. बट लार्जली मैरिड लोगों के लिए क्या? हाँ, नहीं तो भी चलता. देखो, सॉफ्टवेयर वही है ना. अब आप दिन में चलाओ, रात में चलाओ, रेस्टोरेंट में चलाओ, कैफे में चलाओ, सॉफ्टवेयर वही है. वो मैरिड होने के बाद ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स वो इंस्टेंट कटेल हो जानी चाहिए.
होपफुली, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर वही है और वो स्टेटस की रिक्वायरमेंट वहीं से आती है, वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं चाहिए कि आपको सामने वाले से अटेंशन चाहिए, आपको सेम सेक्स में चाहिए कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूं उस फील्ड में मेरे को लोग रिस्पेक्ट करें। और ये जूमिंग इन और जूमिंग आउट आपकी पूरी लाइफ में चलता रहता है। जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको कॉलेज में कूल बनना होता है, फिर आप जॉब में होते हो तो आपको चाहिए होता है कि मैं मैनेजर बन जाऊं या मैं मैनेजर से एक लेवल और ऊपर चला जाऊं, फिर आपको अपने फ्रेंड ग्रुप में लगता है इनके पास सबके पास ये पैसे हैं या ये गाड़ियां हैं या all of that status need is a desire for respect, is also it comes from the mating instinct largely speaking, but that's a theoretical point, you don't have to bother with that. The fundamental question about why people want to be famous is also FOMO, because लोगों को लगता है कि फेम के उस पार कुछ है, और फ्रैंकली वो जैसे नई गाड़ी के उस पार 2 दिन का मजा होता है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि वो तीसरे दिन के बाद बड़ा नॉर्मल हो जाता है और आपका कंपैरिजन जिनसे आप पहले कर रहे थे नॉन फेमस लोगों से वो चेंज होके और फेमस लोगों से हो जाता है। फिर आपको और फेम चाहिए, फिर आपको और रेलेवेंस चाहिए, और वो साइकिल कंटिन्यूसली घूमती रहती है। फंडामेंटली आदमी को पूछना पड़ता है कि इस फेम का पर्पस क्या है, क्या मिल रहा है मेरे को इससे, क्योंकि कोई सोल सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रही। पैसे का एटलीस्ट ये तो सही है ना कि खर्च के घर गर्म रख सकता हूं, खाना खा सकता हूं। आज 2026 में जो फेम 1986 में होता था वो फेम नहीं है। 1986 का फेम 100% मोनेटाइजेबल था, क्योंकि वो फेम बनाने वाले लोग एयरवेव्स कंट्रोल करते थे, मूवी प्रोड्यूसर्स थे, टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स थे, रेडियो स्टेशन के मालिक थे, वो लोग फेम बनाते थे और कुछ ही लोग फेमस हो पाते थे। आज सब फेमस है, और इनफैक्ट मतलब अगर मैं सही में एक नया फेम फिल्टर डालना चाहूं, 100K से नीचे तो कोई बात ही मत करो आप फेमस होने की। मतलब मैं आपको अपने पर्सनल व्यू से नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं अब मार्केट कैसे मूव हो गई है कि इनिशियली सबको मिल जाता था काम, कोई ना कोई ब्रांड काम दे देती थी, अब कोई वो नहीं है, और वो भी चेंज हो जाएगा बाय द वे, दैट आल्सो विल चेंज बिकॉज नाउ platforms are moving differently. But so the question is, if you examine why you want to be famous and you go deep enough, it's a respect thing. And if you want to be respected, it's better, generally speaking, to be respected by 1,000 people very much than by 1,000,000 people little bit. It's much more monetizable this way. It's much more mentally okay this way. आपको सब जानते हैं, इतना स्टेक ले रखा उन्होंने आपके जीवन में ना, तो वो घुसड़े ही रहते हैं आपके जीवन में, और उसके रिटर्न आपको यू डोंट मेक एनीथिंग फ्रॉम इट राइट नाउ, यू आर जस्ट राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फेम की द कमोडिटाइजेशन ऑफ फेम हैज लेड टू फेम बीइंग प्राइस्ड एट 0 इफ यू डोंट डू इट राइट। फेम का प्राइस 0 हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को फेम के एक्सचेंज में, अनलेस नाउ स्पेसिफिकली अनलेस यू अप्रोच फेम विद इंटेंशन कि मैं रेस्ट्रो कास्ट करके पॉडकास्ट चला रहा हूं क्योंकि मेरे को रेस्टोरेंटर से बात करनी है ताकि मैं XYZ ABC कर सकूं। एक फनल बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है, एक फ्लो चार्ट बन जाता है ऑफ अ जर्नी फ्रॉम पॉइंट A to point B, and this is what I'm trying to accomplish for myself. That's one way of doing it. It is a means to an end. Kind of, yes, kind of. It's a means to an end is one way of thinking about it. Or fame also. What I'm trying to say is that fame has 2 categories if you think about it. एक famous होता है, मैं जमाने के लिए फेमस हूं, उसमें 3 या 4 आदमी ही एक इंडस्ट्री में कुछ कर पाते हैं। Like even if you think about let's say musicians, right, and you take an Excel sheet of how much money which musician makes in India, after number 30 you'll find कि कुछ नहीं मिल रहा नीचे, and the graph is like this, like Arijit Singh, Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and like suddenly the graph is going like this. तो वो like you'll find कि नीचे कुछ नहीं बन रहा। तो जो मासी फेमस होने वाला आइडिया है, that is pursued best from the angle of art, कि मैं आर्टिस्ट हूं, मैं अपनी आर्ट बाहर ले जाना चाहता हूं, और उस चक्कर में फेमस हो गया, इंस्टेड ऑफ कि मैं फेमस होना चाहता हूं तो मैं फेमस होने वाले काम करूंगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम, यू अंडरस्टैंड। आपको पता होना चाहिए आप किस ऑडियंस के लिए फेमस हो रहे हो। टिम फेरिस का एक बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है 10-15 साल पुराना, 1000 लॉयल फॉलोअर्स करके। इट्स अ ग्रेट आर्टिकल ऑन हाउ टू डाइसेक्ट फेम, एंड ही इज सेइंग आपको एक्चुअली कुछ भी करने के लिए 1000 लॉयल फॉलोअर चाहिए। ये जो नंबर 1 मिलियन लिख रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, जो 50 मिलियन व्यू आ गए घंटे में उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको 1000 लॉयल आदमी चाहिए ट्रूली टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो 10 ही चाहिए यार, रेवोल्यूशन हो जाता है 1000 में। तो यू अंडरस्टैंड, सो द डायनामिक्स ऑफ फेम आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट माइट सीम। ये बात बोलना बहुत आसान है फेमस हो जाने के बाद, ऐसी हर बात के लिए ट्रू है। जिंदगी की ऐसी डिसअपॉइंटमेंट तक पहुंचने का क्या तरीका है भाई? देखो ये ना, you can actually, so this is a spiritual question. What was, and this is actually a spiritual question. I really want to, fun aside, I really want to know
if you can throw some light on your journey, where trying to be famous or trying to whatever you were trying to, then not getting it, then getting it, and then that stabilizing. What was the mind shift change? How were you experiencing it, if not thinking about it? I mean, I can probably do a rough account of it. पता नहीं वो कितना इस narrative structure के साथ fit होगा जो आपने बोला. I started doing YouTube because COVID हो गया था और मैं खुद बहुत podcast सुनता था. Like न्यूयॉर्क में रहता था तो न्यूयॉर्क में it's a fairly lonely city. Like you don't have a community. ऐसा बहुत ही fragmented बॉम्बे जैसा हाल है. तो सब अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी ट्रेनों में, अपनी अपने सड़कों पे, अपने अपने कपड़े धोते हुए यही चल रहा है पूरा दिन. तो कान में लगा के रखता था, पसंद था. और कोविड स्टार्ट हुआ. अच्छा, उससे पहले आई वॉज रीडिंग अ लॉट. तो आई फाउंड कि देयर इज सम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आई कैन डू विद द कैमरा. और वो कोविड में मैं थोड़ा सा निकालने लगा कि ठीक है, एक तुम्हारी आवाज और एक तुम्हारा आर्टिस्टिक फर्वर है, तुम्हारे पास एक यू वो पावर. बट द वर्ल्ड डज नॉट गिव अ शिट. द वर्ल्ड गिव्स अ शिट इफ यू हैव स्टेटस. The world gives a shit if you have money. It's true. It's a black pill about the world. But it's true. कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ गलत कर रहा है, उसको सही करने के लिए कई बार सिर्फ आवाज की जरूरत नहीं होती. पैसे, ताकत, सपोर्ट की जरूरत होती है. ये एक मॉरल एजुकेशन हमें बचपन में दी जाती है कि आप आवाज उठाओ, सत्यमेव जयते, हम सच करेंगे. आप उठा के देख लो प्लीज. कोई ट्राई करके देखो ना. वो नहीं हो सकता. इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी. द सिस्टम डज नॉट वर्क इन मॉरल फैंटेसी पंचतंत्र लैंड. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो देन आई रियलाइज्ड एज particularly as the oldest son of the family, there is a moral imperative मेरे ऊपर कि मेरे हाथ में वो पावर और वो कैपिटल होना चाहिए कि जो इस दुनिया का भला है वो मैं कर सकूं. सिर्फ आवाज नहीं. आवाज एक जरिया हो सकता है और उसके बाद एक एट्रीब्यूट, एक आभूषण हो सकता है. And then I set out. I was like, now I'm going to use my voice first to build capital, money, influence, all that it takes, and then change the world for the better. That's how I see my journey internally. This is how I live it out in my own head. But the question of जो आपने इससे पहले पूछा कि कैसे पता करें कि भाई मतलब फेम के बियॉन्ड भी Hey, but what was your experience of not getting it, struggling to get it? I did not crack. I don't think I struggled at all. I think like I had a lot of fame. मैं first month of doing YouTube, I'd made enough money कि मैं अपना रेंट पे कर सकता था अमेरिका में. तो मतलब एक साथ ही ऐसा हो गया था कि oh shit, ये तो चल रहा है. And there was some strategic angles to it. I'd figured out some human psychology truths that probably are not worth mentioning, but कुछ ना कुछ मेरे को पकड़ आ गया था कि कैसे व्यूज कमाने हैं एंड कैसे आगे बढ़ना है. द गेम वाज क्लियरर. तो कभी ये वाला इशू नहीं हुआ. आई थिंक फॉर अ ब्रीफ फाइल कभी कभी issues of identity as to like who are you and what are you trying to do, they still happen. Strategy level पे तो fairly simple है. I was trying to dig into your view of how that normalized, even if it was not starstruck, but where does it fall? Because मैं पता है frankly either you stop believing the world and you say कि ये सब ऐसे धोखा है, सब बकवास है, or you get a somewhere middle balanced view. मैं बताता हूँ. मेरे को ना it's a stupid thing to say. एंड आई डोंट थिंक आप लोगों को मेरे को बहुत सीरियसली इस बात पे लेना चाहिए. बट इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट, बॉटम डीप इनसाइड माई माइंड, जब मैं सो रहा होता हूँ या मैं बीमार होता हूँ या कुछ सही नहीं चल रहा होता और कुछ भी खराब चल रहा हो सकता है, मेरे को एक बात पता है कि मैं स्टार हूं. और वो अभी से नहीं पता है मेरे को. और मैं स्टार, फेमस वाले स्टार की बात भी नहीं कर रहा. लाइक मेरे को पता है मैं आई एम हियर टू विन. तो मेरे लिए कभी भी वो चीजें, इट्स लाइक वो पैशन शायद उसको कवर कर गया कि आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना. मैं कभी वो फील ही नहीं हुआ कि ओ शिट, ओ ये भी हो गया. लाइक कभी कभी होता है, देयर आर सम ब्रेक्स वेयर यू गेट दैट फीलिंग कि ओ थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड एट अ स्केल यू डिडंट एक्सपेक्ट. बट इन माई हेड इट्स ऑलवेज बीन क्लियर, आई एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ माई लाइफ. मेरे को पता है ये आना ही है लाइफ में. ऑल ऑफ दिस इज मेड फॉर मी. आई हैव नोन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम डीप इनसाइड. एंड दैट हेल्प्स. आई थिंक ये जो मैनिफेस्टेशन वगैरह की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल डीप सीटेड कोडिंग रहती है, बहुत नीचे दिमाग के कोने में. और वहां पे आपको कन्विंस्ड होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. प्लीज, और कोई ऑप्शन नहीं है. लाइक जब ऐसे भी दिन आते हैं ना कि मैं बहुत हताश होता हूं और ऐसा लग रहा होता है सब खत्म हो जाएगा, तो भी मेरे को पता है तू कर लेगा. और उसके लिए यू नीड अ गुड सपोर्ट सिस्टम, यू नो, ऑल ऑफ दैट. बट डीप इनसाइड यू विल डू इट. और कोई ऑप्शन नहीं है. सिंगल प्लेयर वीडियो गेम है, खत्म करना है ना, तो वो करना है. रियलिस्टिक होते हुए चलना है.
बट ऑप्टिमिस्टिक होते हुए भी चलना है. वो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस बैलेंस करने हैं. डीप इनसाइड इट्स गोना हैपन. और फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. वो हो जाता है. फिर वो हो जाता है. फैंटास्टिक. अब कुछ चटपटा कर ले. लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे. हाँ बताओ भाई यार. जी. How you basically keep yourself so content in life? कंटेंट. मैं तो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं हूं. मेरे से ज्यादा ब्रोकन आदमी इंटरनली कि और चाहिए कि भूख रखने वाला आदमी बहुत कम होगा. नो आई एम जस्ट, मतलब मैं खुश हूं. समझ रहे हो? तो थोड़ा सा यही तो पूछ रहे हैं, हाँ, कैसे? तो खुश. यार एक्चुअली ये बड़ा मिस्ट्री सवाल है. सोचना पड़ेगा मैं खुश कैसे हूं. यार आई थिंक द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट इज, इस मोमेंट में अगर मैं सिर्फ इंटरनली ये देखूं कि किस, इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव कि इंटरनली मेरे को किस चीज से खुशी और मिलेगी. तो मेरे को आशीष भाई के साथ मस्ती करके और खुशी मिलेगी. आपको इस क्वेश्चन का आंसर देके और खुशी मिलेगी. एंड इंस्टेड ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग कि मैं खुश कैसे हूं, अगर मैं सिर्फ उसमें लीन करता जाऊं ना कि देखो आपके लाइफ के कुछ कंस्ट्रेंट है. मेरे लाइफ का कंस्ट्रेंट ये है कि मैं 6 बजे से 7:30 बजे आशीष भाई के साथ हूं आज, और 8:30 से 9:30 मैं गाड़ी में हूं. और ये आपका कंस्ट्रेंट है ना. अभी कभी प्लेन में बैठे हो तो ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट वाली फील आ जाएगी. और अगर आप इंडिया में हो तो ऐसा नहीं है चाइना वाली फील आ जाएगी. अगर छुट्टी पे हो तो काम वाली फील नहीं आएगी, काम पे हो तो छुट्टी वाली फील नहीं आएगी. ये आपके लाइफ का सत्य है. इससे आप नहीं लड़ सकते. अब इस गिवन गेम में आप कितना फन प्रोड्यूस कर सकते हो, वो फ्रीडम आपकी है. आपको ऑफिस जाना है, ये दुनिया का गेम है. वहां जाके आप कितना काम एंजॉय कर सकते हो, वो आपकी फ्रीडम है. और कभी कभी आप रियलाइज कर सकते हो कि ओ, ये काम मेरे को एंजॉयमेंट नहीं देता, मेरे को शायद कुछ और काम करना है. वो कभी कभी की रियलाइजेशन ठीक है. बट कभी कभी यू हैवंट ट्राइड इनफ. यू हैवंट ट्राइड इनफ. यू हैवंट आस्क्ड योरसेल्फ कि मेरे को खुशी मिलती भी किस चीज से है. मेरे को एक बात फंडामेंटली पता है, मेरे को गेम खेलने से बहुत खुशी मिलती है. ये वाला जो मैं खेल रहा हूं, मेरे को आई कैन स्टे अप ऑल नाइट प्लेइंग चेस. आई वाज जस्ट ग्रू अप लाइक दैट. मेरे को पर ये बात क्लियर है कि गेम खेलने में मजा है मेरे को. तो मैं गेम खेलने के लिए और क्या करना है, वो चीज करता रहता हूं. एंड सो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस. आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव होकर देखना पड़ेगा कि खुशी है कहां. वो है अंदर ही. और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा झुकते चले जाना पड़ेगा. उसमें थोड़ा थोड़ा कभी लगेगा कि मैं पागल तो नहीं हूं. मैं रियल बात बता रहा हूं. व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग लाइफ ऐसे ना इंटरनल होके, तो कुछ चीजें आप करोगे जो कभी सेंस नहीं मेक करती हैं. बट वो सच है. लाइक वो थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में जाना पड़ता है. दिस इज द स्पिरिचुअल आंसर टू दैट क्वेश्चन. I can, because you said about the game, right? I think one thing that I can add to this is, whenever I have heard anybody saying कि मेरे को ना actually मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने हमेशा हल्का सा खुरेचा तो पता लगा एक्चुअली वो जीत नहीं रहा है. या वो गेम की फ्रेमिंग थोड़ी चेंज होने की जरूरत है. कुछ ना कुछ हाँ ऐसा ही लगता जो है. भी, बट फैक्ट ये है कि चाहे वो गेम गलत है, चाहे उसके एप्टीट्यूड की है नहीं है, वो सब इंटेलेक्चुअलाइजेशन है. फैक्ट ये है कि वो जीत नहीं रहा है. एंड क्योंकि वो जीत नहीं रहा है, वो तो उसको तोड़ता लग है. रहा है कि यार ये मजा नहीं आ रहा, मेरे को नहीं खेलना ये वाला गेम. एंड आई कैन बेट, which is what he said, that at times you have not tried enough. If you actually try a little more, and if you get even a semblance of winning a little, suddenly the color of the game changes. हाँ, एक बार जैसे स्कूल में होता है ना कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर मजा आ जाता है उस सब्जेक्ट में. इट्स बेसिकली दैट. फिर आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट में अच्छा हूँ. फिर आपको और रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है. Delusion is important. विनिंग इज एक्चुअली अ वेरी अंडरस्टेटेड एलिमेंट ऑफ, मतलब जब हम मेल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं लार्जर, हम आज नहीं कर रहे, बट आई थिंक सक्सेस एंड विनिंग इज अ वेरी अंडरस्टेटेड एलिमेंट इन दैट कॉन्वर्सेशन. सब ये कह देंगे कि आप थेरेपी कर लो, सब ये कह देंगे कि आप फलान ढिमकान कर लो, कोई ये नहीं कहेगा जीत ना जाके. और जरूरी नहीं है कि एक ही गेम में जीतना है. हाउ मच मनी यू मेक. कभी कभी आई नीड टू फिक्स माई रिलेशनशिप विद माई फादर. और वो एक गेम है, वो ट्रिकी है, वो आसान नहीं है. उस गेम को प्रॉपर टैक्ट के साथ खेलना पड़ता है, धीमे धीमे उतारना पड़ता है. कभी कभी पापा को उधर से, कभी कभी खुद को इधर से, है ना. या आई वांट टू बी मोर हेल्दी. लॉट ऑफ अस नो इंटरनली आई वांट टू बी मोर हेल्दी. दैट्स अ गेम यू हैव टू प्ले. बट तुम उसको इग्नोर कर रहे हो. एंड सो सक्सेस एंड विनिंग इज अ वेरी अंडरस्टेटेड फैक्ट इन mental health conversations. You'll feel a lot better if you're able to put your phone away. Believe me. And ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया है फोन, मैं भी स्क्रॉल ही कर रहा हूँ. बट you know this, right? One very good question. Since you started doing more intellectual and heavy podcasts, views have fallen down, and looks like the Indian community or in general people are not interested in deeper conversations.
What are you doing about it? How do you think about it? This is the question I'm wrestling with actively every day. ऐसा नहीं है कि हम कोई सरप्राइज है कि व्यूज कम है, हमें पता था आप लोगों को कचरा देखना है, हमें पता है. What we wanted to see is if we dump a bunch of these episodes, does the platform allow for discovery to people? क्योंकि कोई ना कोई तो interested है. ऐसा है ना, मेरे को लाख ही आदमी चाहिए. I need 100,000 people listening to that shit. Because जो वो सुन रहा होगा ना, वो self-selected premium है और उसका level of commitment high है. What I've realized is there's two ways to build a media identity. हाँ, एक तो ये कि मैं maximum लोगों के पास चला जाऊंगा, but वहाँ loyalty बड़ी कम होगी. Because आप एक you're like a billboard. कोई भी आप पे आके छापा लगा जाएगा, एडवर्टाइजमेंट लगा जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा, पर कोई बिलबोर्ड देख के ही नहीं कहता वो मेरा जीवन बदल गया. देन देयर इज अ बुक. वो आप बुक परचेज करते हो, उसमें एक इंटेंट होता है. कम लोग परचेज करते हैं, पर जब वो उसको परचेज करके पढ़ते हैं, दे माइट से वो मेरी लाइफ बदल गई. दोज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, राइट? And so there's a billboard kind of media, or what we think of as bomber media, which is massive number of people. This is mass. This is what keeps us relevant. This is what brings money at home. This is what allows us to be here and talk to you and you to take me seriously. That's one. The second part is a more fundamental thing, which is who do I want to be and what kind of influence I want to create. और ये कभी-कभी ना ऐसा right angle triangle रहता है. ये कभी-कभी it's not parallel lines. It's completely orthogonal to each other. Completely different. And what we are realizing is that might be the case for me. कि जैसा मेरे को content बनाना है, वो कोई नहीं सुनेगा. It might be. Recently, how we've been thinking about it is कि simple है, channel separate कर दो. एक जगह play the game, scale the business, make the money, do what is needed to be done on that side to keep the lights going. और इस side patiently over a 5-year period build the identity you want to build on a second channel. But ये realization हमें ये सब करके ही समझ आ रहा है कि oh shit, like you know, maybe this is not the best way to go about it. Maybe we should have a separate channel. But the good thing is, in sacrificing a lot of views and saying I make this content, I have acquired a lot of brand equity. कि प्रखर बहुत serious premium podcast करता है intellectual, and that's worth it. क्योंकि अगर यहाँ वापस views आने शुरू हो गए, तो वो brand equity में transfer करके एक दूसरे channel में डाल सकता हूँ. And then I can say, let's build this audience out. And मेरा guess ये है, over a period of time, not just Indian, a lot of non-Indian people will come and watch that content. और फिर वो जो audience बनेगा ना, वो एक next level audience बन सकता है for business purposes and influence purposes and capital purposes and all that. That's how I'm thinking about it. Perfect. So one last question, and you know, Ripunjay, go. So you told us about the podcast with actors, politicians. So how much is the difference with Colonel Shivendra Kanwal? यार मतलब ऐसा मैं तेरे को बोला ना, रियल तो सारे ही हैं. ऐसा कुछ नहीं है भाई. मतलब सब नॉर्मली रहता है इंसान यार. मतलब सब इंसान को बाथरूम जाना पड़ता है, सब चप्पल उतारते हैं, समझ रहे हो? लाइक वो ऐसा, मतलब वो ना द एक देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द मीडियम इज द मैसेज. ठीक है, उसका अर्थ ये कि जैसे आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो ना, जिस मीडियम में, वो अल्टीमेटली उसमें ही एक मैसेज कोडेड होता है. तो फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई चीज पढ़ी हुई लिखी हुई पढ़ते हो, यू आर मच मोर लाइकली टू थिंक इट्स राइट एज अपोज टू अगर आप सुनते हो. पर अगर किसी की बात, पर्सनल टेस्टिमनी लिखी हुई आप नहीं मानोगे, सुनी हुई मानोगे. तो एवरी मीडियम हैज इट्स ओन मैसेजिंग, एंड द स्क्रीन इज दिस मैजिक मिरर कि जो उसके उस पार है ना, उसकी लाइफ सेट है. तो आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली एक एसोसिएशन बिल्ड कर लेते हो विद मीडिया पीपल, और स्पेशली योर फेवरेट वंस, कि ये स्पेशल है, ये इसमें कोई बात है. फ्रैंकली सब ऐसे ही हैं. हाँ, मतलब दिस इज बीन माय कंज्यूमर साइड एक्सपीरियंस कि मैं जिससे मिला हूं ना, सब नॉर्मल है, सबका सेम ही इशू है. किसी को दूध नहीं पचता, किसी को चाय नहीं पसंद, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. डिफरेंस व्हेन यू डिग डीपर, श्योर लोगों की लाइफ स्टोरीज में और कन्विक्शंस में डिफरेंस होता है, और कि किस एंगल पे वो हार्डकोर हैं. लाइक आशीष भाई को एक और फ्लाइट पकड़वा दो, उनको कोई नहीं रोक सकता ना, मतलब वो नहीं थकते. ही इज एनर्जाइज्ड लाइक दैट. शिवेंद्र कनवल को एक और वॉर जोन में फेंक दो, वो नहीं थकता ना, वो उठा लेगा बंदूक. तो सबके फिर वो कहाँ पे उनका फटता है वो अलग रहता है. मेरे को एक और माइक दे दो ना, मैं 4 घंटे बैठ के बात कर लूंगा, मेरे को नहीं थकता, वो अलग होता है. बट नॉर्मली रहता है इंसान ऐसा. How much of a critic are you of your own self? Are you in love with yourself, or you What do you still think? find mistakes? I'm mostly more than okay with myself. Like,
Loving myself, yeah, sure. I think I'm super lucky, super gifted, super blessed. God has been incredibly kind. In that way, yes, I love my life and I love myself. My profession is weird because my performance, it's not like I'm not software. So I can't critique the software. I have to critique myself. मैं कैसा बोला, मैं कैसा परफॉर्म, मेरे कपड़े कैसे थे, मेरे बालों में डैंड्रफ था क्या. It's all me. मेरा business is my face and my voice and my reputation and my image. And for a guy who's telling you, by the way, ये सब demystify कर लो, मीडिया में कोई image नहीं रहता, my business is image. I have to look a certain way. Right? I have to, कभी थोड़े टाइम बाद मेरे को रोलेक्स डालना पड़ेगा या वो जो भी पटीक फिलिप जो भी चलता है. Because नहीं, मैं I'll tell you, तेरे confusion में 1.5-2 करोड़ का फर्क है. I actually don't care because मेरे को पता नहीं है सबके बारे में. But you know, I heard this. I was sitting in a vanity van with a bunch of these very famous musicians, and this guy is like, दूसरे musician को कहता है, भाई आप सही कह रहे थे यार, fans को देखनी है मेरे हाथ में ये घड़ी. और मेरे को तब क्लिक हुआ क्योंकि फैन भी अपनी एस्पिरेशन इसके थ्रू जी रहा है. वो कह रहा है इसने खरीद लिया ना अगर, तो मैंने खरीद लिया. एंड सडनली अब उसको घड़ी पहनना पड़ेगा. सो you know, this is about आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, you always have to criticize yourself because you're the product. So you criticize yourself, but it's a blessing I get to do this. Like you have to be so unique to get to do what I do, and I'm very happy with that. But at times, you know, if I double click on my question, do you love yourself, seeing yourself when you're speaking, or you always like कि अरे यार इसमें better हो No, सकता no, था, no. I think I'm fantastic. No, I think I'm fantastic. Like I know I was this. expecting that. Thank you. No, I know this. I think I can always do better, and like there are certain angles. See, I also cannot learn in theory. मेरे को बोल बोल के सीखना पड़ेगा. But I think I'm a fantastic storyteller. मैं माहौल बांध के बिल्कुल बात आंखों में देख के कर देता हूँ तो समझ में आ जाती है. मेरे को रिएक्शन पता है. Like as a stand-up comedian knows when they're funny. I know when I'm engaging and when I'm boring. One interesting one, I know it's over abused, but ये जो सारी I think Gen Z को थोड़ा ज्यादा पेला जा रहा है इंटरनेट पे, पर इन जनरल दुनिया में जो एंजाइटी, मेंटल हेल्थ और इन सब टर्म्स को लेके जो खिलवाड़ चल रहा है, where people, you know, when people come to me, I've seen vocabulary change over last 5 years. आज से 5 साल पहले वाला आदमी इतना सुखी आदमी था, वो मेरे से आके बोलता था सेल्स नहीं हो रही है. अब वाला मेरे को आके कह रहा है कि you know what, I'm actually under therapy and it's too stressful and my anxiety is up and I'm not able to perform. And फिर मैं पूछ रहा हूँ तू करता क्या है, परफॉर्मेंस कहाँ देनी थी, बोला सेल्स नहीं हो रही है. तो मैंने बोला सीधा बोलना सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स के बारे में बात करेंगे, तू कहाँ इतना सब घुसेड़ दिया तूने. What's, and I think Gen Z has gotten that vocabulary in gift. क्या हो रहा है? What's your observation? So many. I am fascinated by the idea of generational, like जो ये moments होते हैं ना कि जहाँ millennial Gen Z बन गया और Gen Z फिर Gen Alpha बन गया. मैं सही बता रहा हूँ, the largest culture shifts occur exactly at that. ठीक है? तो मेरे को ना आज एक reel दिखा जहाँ एक बंदा कह रहा है, at what age do you feel comfortable to share a meme on your story? Like, what are you trying to do? This is such uncle behavior. And I'm like, uncle? हम तो शेयर करते हैं भाई मीम अपनी स्टोरी पे. बट आई टेल यू द डिफरेंस. हम तब से मीम शेयर करते हैं अपनी स्टोरी पे भाई जब सिर्फ आपके दोस्त आपकी फॉलोइंग में होते थे और वो आपकी स्टोरी देख सकते थे. एक मिनट, आर यू ट्राइंग टू से कि नहीं करना होता है क्या? नहीं, अब सुनो सही. देयर इज अ जनरेशन दैट गॉट ऑन इंस्टाग्राम जिसके टाइम तक सब कुछ पब्लिक हो चुका था और सब कुछ एल्गोरिथम हो चुका था. उनके लिए आप क्यों किसको दिखा रहे हो ये स्टोरी? एंड दैट्स अ जनरेशनल मोमेंट. किस टाइम पे एक जनरेशन ऑनलाइन आती है और उसका क्या इनहेरिटेंस होता है, उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसका क्या पास्ट होता है, उसका क्या फ्यूचर होता है, उसका क्या प्रेजेंट होता है. फॉर इंस्टेंस फॉर अस मे बी द इंटरनेट इज, हाँ ये तो था ही ना. बट इफ यू आस्क हिम, मे बी इवन मी टू सम एक्सटेंट, वी लाइक कहाँ था इंटरनेट? कुछ टाइम तक तो हम लोग वो पेपर के बोर्ड्स बना के फेंक रहे थे, गिल्ली डंडा वगैरह खेल रहे थे. एंड देन सडनली इफ यू लुक एट किड्स नाउ, अपनी बात कर भाई यार. मैं तो वो कंचा वंचा खेल रहा था, फिर सडनली एकदम फेसबुक आ गया और लाइफ ओवरनाइट ही आप फार्मविल खेलने लगे. देख भाई, मेरा पुराने जमाने के इंटरनेट का ट्रॉमा बताऊं कि हमने इंटरनेट तब यूज करना शुरू किया है जब आपने एक फोटो पे क्लिक किया है. अब वो फोटो पिक्सल बाय पिक्सल लोड हो रही है और वो आधे में आके इंटरनेट कट गया है. आशी भाई, मैं ना टीवी पे ना 2004-5 में टीवी पे ना एक ड्रैगन बॉल जी करके एक टीवी शो आता था. ठीक है, उसने
कार्टून नेटवर्क ने ना उसके सिर्फ 34 एपिसोड खरीदे थे, जिसने भी बनाया था उससे। वो 34 एपिसोड प्ले करते थे, फाइनल आने ही वाला होता था, शुरू से स्टार्ट कर देते थे। भाई मैं 1-1.5 समर मैंने देखा, मैं बड़ा ऐसा हो गया कि यार ये तो शो ही नहीं खत्म करके दे रहे यार, पूरा ऐसा बिल्कुल मूड बना के। फिर मेरे को उस टाइम इंटरनेट मिला 2007 में, तो मैं इंटरनेट पे सर्च करता था और उसके इंग्लिश के एपिसोड्स ढूंढ के डाउनलोड करता था। 12 kbps से 22 kbps की स्पीड आया करती थी इंटरनेट की, और मैं पूरा ना उसको फोकस कर रहा होता था कि मेरे को लगता था अगर मैंने उंगली हटाई इंटरनेट चला जाएगा, फिर दोबारा डाउनलोड पे लगाना पड़ेगा। इतनी तो इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी तब, पर वो देखा करता था। सो बेसिकली माय पॉइंट इज एवरी जनरेशन हैज अ कल्चर दैट दे इनहेरिट एंड देन दे इन्वेंट। ये एक रियलिटी है। Now, your question is कि क्या anxiety, depression, etc. words have they become overused such that people are in overdiagnosis? Yeah, what are you experiencing? What are you watching? What's your opinion? I'll get to it in just a second. And I think the other side is, I think a lot of people are still not diagnosed, or they don't have vocabulary for what might be wrong. और इसको समझना थोड़ा complicated है, इस पे थोड़ा time spend मेरे को भी करना पड़ेगा to draft this idea out. But effectively, एंजाइटी होना और एंग्शियस होने में फर्क है। एक डायग्नोसिस है, एक हालात है, और हमने ना सबने उसका कचरा बना दिया है। मैं भी किसी एक पॉडकास्ट पे था एंड आई सेड दिस, आई सेड मेन डू बेटर इन जिम्स देन इन थेरेपी, एंड आई सेड सम वर्जन ऑफ इट एंड इट बिकेम, मेरे को क्या खदेड़ा है पब्लिक ने। मुझे उसका क्लिप आया। हाँ, एक कोई उसमें एक लड़की कह रही है, yeah, but no, there is a girl who's reacting to that clip saying कि अगर आपके साथ बचपन में कुछ गलत सलत हो गया था तो आप जिम जाके क्या करोगे आप जिम जाके? आप तब थेरेपी ही जाओगे। पर मैं बात डायग्नोसिस लेवल की प्रॉब्लम की नहीं कर रहा, मैं हालात लेवल की प्रॉब्लम की कर रहा हूं। लो लेवल मेंटल हेल्थ इज एन इशू विद एवरीबॉडी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज कि सारा जो एम्प्टी स्पेस है ना आपके दिन में, उस पे कोई ना कोई आपके स्क्रीन से आप पे चिल्ला रहा है, कोई ना कोई पीओवी व्हेन मेहमान कम होम टाइप की कोई वीडियो चल रही है। आपका दिमाग सारा टाइम सड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन से, दे हैव हाईजैक्ड यू बॉस, और वो लो लेवल एंजाइटी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, पहली बात। दूसरा, और ये एक डिप्रेशन का डायग्नोसिस है, जब आपका काम बहुत हद तक कंप्यूटर स्क्रीन से होता है कि आपने कुछ किया और उसका इंपैक्ट मेजरेबल नहीं है, तो आप मीनिंग मिस करते हो लाइफ में कि मैं ये करता क्यों हूं। एक्सेल शीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का फायदा ये कि हाँ, देयर ग्रेट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट व्हेन यू स्पेंड ऑल डे डूइंग जस्ट दैट, यू डोंट फाइंड रियलिटी। आप एक डिजिटल इंटरफेस पे हो पूरा दिन, एंड व्हाट दैट डज इज इट डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम योर सोल इन अ वे, एंड दैट इज व्हाई समथिंग एज सिंपल एज प्लेइंग अ स्पोर्ट, खेती बाड़ी, all those things suddenly add, you're like, अरे वाह यार, जीवन वाह कलरफुल हो गया। And so a lot of people feel what are symptoms like depression, but they're not always depressed. The other thing is a lot of people are, और ये मॉडर्निटी का फड्डा है, जिस तरीके से पैसा, स्क्रीन्स, इंफॉर्मेशन इवॉल्व हुई है ना, उसका जो कूड़ा है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। जैसे जब चीनी बनी तो डायबिटीज बिकेम अ प्रॉब्लम, जब कार्बोहाइड्रेट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स पुश करी गई, तो सबको हार्ट डिजीज और डायबिटीज हो गया ना, हमारे सबके पेरेंट्स को है ना, कुछ कुछ तो हमारे केस में भी डायबिटीज सबको होना लग गया ना। अब हम जेनरेशनली ऐसा बन गए हैं पॉपुलेशन की, हाँ हमें तो डायबिटीज होता है। एवरी एक्सेस क्रिएट्स सम काइंड ऑफ गार्बेज, एंड द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन and modernity and the way work functions now, and I can get into the psychology of it for hours with you guys, but there is no point. It creates this gandagi, and it is your moral imperative. आपके जीवन में आपका अपना moral imperative है कि आपको ही fight करना है। मेरे को होती है anxiety कभी कभी, मतलब मैं घर ड्राइव कर रहा था रात को, and I'll call up my wife and be like, यार मेरे को कभी कभी ऐसी बेकार की anxiety होती है, मेरे को बीच में लगा मैं अंधा हो रहा हूँ, and I convinced myself, मैं डॉक्टर के पास जाके बैठ गया यार। डॉक्टर ने मेरे को बोला तेरी आंख में ड्रॉप डालूंगा, 12 घंटे कुछ नहीं दिखेगा, फिर बताऊंगा कि तू अंधा हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा ये तो और डरावना प्रोपोजिशन है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को सिर्फ एंजाइटी है, मेरे दादाजी को एक रेयर डिसऑर्डर है जिसके कारण उनको नहीं दिखता, एंड दैट एंजाइटी इज क्रेप्ट इन, और वो कब घर कर गई यार, उसके बाद से मैंने कभी सोचा ही नहीं है डर, उस दिन के बाद से। फिर कभी ऐसा लगेगा कि रात को पापा को फोन आके कुछ हो गया क्या, एंड आई रियलाइज्ड आई हैव एंजाइटी, थोड़ा बहुत ऐसा, बट कोई डायग्नोसिस लेवल नहीं है। और अब पता लग जाता है, अबे फिर बंदर नाचना शुरू हो गया, लाइक यू नो you're stressed about something. So I think mental health conversations are both overpriced and underpriced. I think they've not found their right audience, and I don't think they've found the proper language. तभी दोनों साइड लड़ रहे हैं, नहीं नहीं हम तो देख लेंगे, और दूसरे कह रहे हैं अरे थेरेपी में जाओ ना, थेरेपी में जाओ ना। निकलेगा कौन थेरेपी से? खत्म कब होती है थेरेपी?
वो भी कोई एंड गोल सोल्यूशन आपने सोच के नहीं दिया है, आपने कह दिया है क्योंकि आपको किसी ने कह दिया है ये कह दो, तो आप भी कह देते हो. ठीक है. बाय द वे, थेरेपी हेल्पफुल, जिम आल्सो हेल्पफुल, राइट? लाइक ऐसा नहीं है. I've enjoyed therapy myself. बट फिर बोरिंग हो जाता है. अब तक बैठे रहो. हाँ, मेरे जीवन में एक और दर्द. सुनो, पैसे भी ले लेना जाते हुए. Any last question? Oh, bhai sahab. Damn, you see the demographic shift? Please. अभी तक कहाँ था तुम? हाँ हाँ. So I think that person is deeper than this, right? So what was that one situation that changed your perspective towards that? I think there's a lot of childhood trauma in that answer. नहीं, my perspective in life is changing pretty constantly. ऐसा कोई unique oh my god moment नहीं होता. It's not really about having a bad experience in childhood versus good experience in childhood. It's not about that. I think the dynamics with parents and your teachers early on is also that these are the figures of authority, figure of love, and they start defining so much. I see that, and especially in India, I see that a lot. Culturally, we are suppressed in a certain way. Our relationship with authority of any type and kind, boss, teacher, parents, whatever, whoever is in power order above you, the relationship is to bottle up as much as possible and then volcano. There is nothing in between. There is no respectful dissent. There is either कि हाँ भाई ठीक है देख लेंगे जो तू करेगा, या फिर it's like कि ठीक है साहब आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, हमें तो आइडिया नहीं है. And that definition, you know, fighting with an authority while keeping that respect, I think that's, I don't know how to. अरे बड़ा मुश्किल होता है भाई, बड़ा मुश्किल होता है, पर करना रहता है. Like you're 11-year-old, that's your world, you know, your family, your dad, and all fathers, like some of you are probably fathers now or will be soon. You're quirky. सबका अपना एक एंगल रहता है ना कुछ लाइफ में. तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे आपसे नहीं लड़ना चाहेंगे. आपके बच्चे भी आपके प्रति वही फील करेंगे जो आपने अपने पिताजी के प्रति, अपनी माताजी के प्रति फील किया. वो एक, it's a cycle. It runs its course. We will all grow up to find our kids disappointed in us at one moment, or they will think we are uncool. And suddenly you are like, मैं कब अंक हो गया? Like, I thought I was the young one, right? And so there is grace in the fact कि यार he's trying. और इतना ही कर पा रहे हैं. बहुत चीजें हैं फाइट करने को जीवन में. अब तुम देखते ही हो यार कितनी टेंशन है, उसमें वो हो जाती हैं. Do you believe कि plan B होना चाहिए? मतलब अगर podcast नहीं तो plan B. यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. देख पता है था मेरा प्लान भी. जब मैं वापस आया ना अमेरिका से, तो पापा ने मेरे को डे 1, मतलब मेरी फ्लाइट लैंड हुई रात के 2 बजे, मैं घर के अंदर घुसा हूँ, एंड 7 साल बाद लड़का वापस आया. ठीक है, शादी की उम्र हो गई लड़के की, कह रहा है पापा विदेश छोड़ के आ रहा हूँ, सब उम्मीदें छोड़ के. 2 बजे, मेरे पापा 9 बजे सोने वाले आदमी है. 2 बजे रात को मैं उनके कमरे में जाता हूँ पैर छूने के लिए कि मैं घर आ गया हूँ. कहते लॉ के फॉर्म लाया हूँ, भर देना. लिटरली मैंने पेपर दिए हैं, मैंने पहले सेमेस्टर के पेपर दिए हैं. दूसरे सेमेस्टर में मैं भूल गया था कि एग्जाम्स होते हैं. 2 एग्जाम बाद याद आया, 3 पेपर उसके भी दिए. मैं पास हूँ 2 सेमेस्टर, ऐसी बात नहीं है. तो शुरू में था, जब तक पता नहीं था टेक ऑफ हो जाएगा. अब टेक ऑफ हो गया. अब उसको मैं ऐसे नहीं देखता कि प्लान बी कहीं और होगा. नाउ यू थिंक कि व्हाट आर द assets I have. So I have reputation, I have reach, I have my ability to talk is an asset, my network's an asset, the way audiences and colleagues respect me is an asset. How can I leverage this to the next thing? So now plan B is, if this crashes, how can I leverage this for another thing? फिर ना आपकी skills exportable होती जाती हैं, और आपका जो आपने कमाया है वो आप translate कर सकते हो. You can apply a transformation function to it and take it to the next page, and that's how you think about it. तो ऐसा कोई प्लान बी तो नहीं है. और अगर मैं ये सोच के जीऊंगा ना कि ये कल को खत्म हो जाएगा, वो सोच तो नश्वर सोच है बॉस. लाइक ओवर है गेम, ओवर है वो. ऐसा नहीं सोच सकते आप. हो जाएगा तो जल जाएंगे साथ में, फिर कुछ नया बना लेंगे. This is your hint that the guest does not want to speak about that. No, I honestly, it's such a depressing thought. फिर क्या करूंगा मैं? बात करके ही तो बना सकता हूं मैं. Let me translate his answer. मैं नहीं खेल रहा. हाँ, तो हम थोड़ा और फिर हम Irrelevance थोड़ा की नहीं और रखी है. हाई लेवल हो जाएंगे. हम बोलेंगे अब हम बात भी करेंगे पर थोड़ी. पता है, I'll tell you what we talk about it within the industry. We are like, हाँ तो क्या पिवट मार लेंगे, न्यूज कंटेंट दे देंगे तुम्हें चेहरा चाहिए ना, दे देंगे, थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे, थोड़ा सेल्फ हेल्प कर देंगे, और थोड़ा देखो, a lot of us die in this process. Some people become completely irrelevant. Carrie Minati found out day before yesterday people don't like him anymore. Wow, right? Like it just happens. But trust Carrie Minati to reinvent himself.
he's a winner, right? Like, trust Ranveer Alabadia. Even when he got hit, I was like, he'll survive. He's cockroach material, boss. He does not die. उसको पता है जिंदा कैसे रहना है. That's one thing he knows very well. तो जो people at the top, Bhuvan, he outplayed the game. He's on the other side. He's doing movies with Dharma. जिसको गेम खेलना आता है वो खेल लेता है. And this game involves a little bit of luck and timing and all these things to conspire. Show business का the bigger thing is you have to really be lucky to be in it. क्योंकि कोई आप प्लानिंग से नहीं घुस सकते शो बिजनेस में. लॉट ऑफ पीपल ट्राई व्हाट पीपल वांट. क्या पसंद आए उन्हें तुम में, क्या अच्छा लगे. मेरे को थोड़ी पता था मेरी हंसी फेमस रहेगी. मैं तो 2 महीने तो मैं सोचता रहता था ये सब कुछ जोक चल रहा है ना, लाइक मेरी हंसी इतनी खराब है, राइट? लाइक तो you don't know what people want and what they will respond to. So show business is a lucky business and you have fun while you're in it. I really have to. Really have to, huh? Make sure the question's worth it, huh? Makes sense. So people who say कि नहीं plan B होने से आप plan A में focus नहीं करते, आप focused enough नहीं हो, are they just trying to sound intellectual? No, they're also right. They're also right. आपको कमिटमेंट तो देनी पड़ती है. देखो, आप बोलते हो, हाँ सही कह रहे हो आप. हाँ, अगर आप if you're not committing आप नहीं पारोगे. हाँ क्या हो गया? मैं कह रहा था बाद में मैं बनाओ तेरा प्लान. नहीं no he's spot on. मतलब आपको you need देखो entrepreneurship which is solving your own problems, let's put it like that, is the art of taking something impossible and making it possible. क्योंकि वो शुरू में इम्पॉसिबल ही रहता है. किसी को नहीं पता होता कि एक ड्रीम 11 बन जाएगा या एक ओला उबर बन जाएगा. किसी को नहीं पता होता. आदमी कहता है ये करते हैं, सब कहते हैं पागल ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ये रे 1000 रीजन ये नहीं होगा. वो आदमी कहता है तुम साले मेरे को पागल कहते हो, मैं तुमसे बड़ा पागल हूं, मैं कर दूंगा. That only happens अगर आप, are you married? Are you old enough for that? Like imagine getting married and saying कि यार मेरे पास बैकअप होना चाहिए. Right? Like you will never make it work if you have. तभी तो टिंडर के चक्कर में इतने डिवोर्सेस बढ़ गए हैं, बिकॉज सबके पास ऑप्शन है ना. वो ऑप्शन, द बोट्स हैव टू बी बर्न्ड. द बोट्स हैव टू बी बर्न्ड. एक बार आप नदी के उस पार चले गए, अब नहीं वापस जाना. The boats have to be burnt. That's what we call your wedding. The boats are burnt after that. Right? Like I'm joking about it, but you What get my will you point. do with all the mating success that is coming your way? Yeah, right. अब मैं क्या करूँ? Famous हो गए. Do you think there is a way that you could combine both fun and intellectual, just like Nikhil did with Elon, like a famous personality? नहीं यार, ऐसा नहीं होता. Like fun with intellectual. First of all, I don't think that conversation was fun. I think it was smart. I don't think I was watching it and be like, Nikhil क्या joke मारा है. Nobody's saying that, okay? ये ना, these are synthetic concepts कि ये mix हो जाएगा क्या? करके दिखा. और उसको फिर monetizable बना के दिखा, और उसको फिर मासी बना के दिखा. अरे इतना sensitive edge होता है ना, उसको mix करना बहुत मुश्किल होता है. Sometimes I look at my podcast and I'm like, हाँ मस्ती मस्ती में काफी गहरी बात हो गई. आज भी मस्ती मस्ती में काफी गहरी बात हो गई. ये होता है फन को इंटेलेक्चुअल बनाना और इंटेलेक्चुअल को फन बनाना. ठीक है ना? पर ये सब गेस्ट्स के साथ नहीं हो सकता. निखिल घुसते हुए नहीं कहता मैं फन में इंटेलेक्ट कर दूंगा. ऐसा नहीं होता. ठीक है? निखिल जस्ट हिमसेल्फ एंड आई एम 2 डिफरेंट पीपल. आई नो दिस. जब मैं हिंदी में बात करूंगा तो जोक्स आएंगे, जब मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो ज्ञान आएगा. आई हैव नोन दिस. ये 2 मेरी पर्सनैलिटीज हैं. एंड नाउ इट्स अ मैटर ऑफ सॉल्विंग फॉर डिस्कवरी. इट्स नॉट ब्रांड आइडेंटिटी. तो दोनों ही है ना. जो तू बात कर रहा है मिक्स करने को, वो तो है ही मिक्स्ड. वो पर्सन में मिक्स्ड है. उसको कंटेंट में कहां घुसेड़ूंगा? 2 कंटेंट अलग कर लेता हूं. ऐसा मैं अभी सोच रहा हूं. मेरे को नहीं लगता वो मिक्सिंग वाला काम चलता है. आई थिंक इट बिकम्स, आप ना यू स्टार्ट इन्फेंटलाइजिंग. आप बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हो बड़ी सिंसियर बातों को. फन और इंटेलेक्चुअल दोनों होने के चक्कर में बहुत ट्रिकी लाइन होती है वो बैलेंस करना. And on that note, Prakhar, thank you for being Thank you, guys. super candid. I think idea, every year, this week, this kind of session, the idea is to just have, give people a lot of perspective. I mean, this was like a, podcast, a live podcast going on, podcasting with the podcaster. But thank you. Prakhar is here for our love, for our relationship, and thank you for being candid, open, chillaxed, and yourself.